Hello students, welcome in the online class of mathematics. So students, we were discussing the applications of De Moivre's theorem. ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ nth roots of a complex number ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ primitive nth roots of unity. Third is solutions of equations. Fourth is expansion of cos raised to the power n theta and sin raised to the power n theta. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ cos n ਥੀਟਾ ਐਂਡ sin n ਥੀਟਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ cos ਤੇ sin ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ cos n ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ sin n ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਫਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਮੋਵਰ ਥਿਊਰਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि cos n theta sin n theta ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ cos theta ਐਂਡ sin theta। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀ ਮੋਵਰ ਥਿਊਰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੀ ਮੋਵਰ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਫ n ਇਜ਼ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, then cos theta plus iota sin theta raised to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n थीटा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ हैंड साइड है इनू इधरली साइड ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ हैंड साइड है इनू राइट साइड ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ cos n थीटा plus iota sin n थीटा, क्योंकि ਅਸੀਂ cos n थीटा ਤੇ sin n थीटा ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ cos थीटा plus iota sin थीटा raised to the power n। Now write the binomial expansion of right hand side. Right hand side the binomial expansion की आएगी cos raised to the power n theta plus nc1 cos raised to the power n minus 1 theta into iota sin theta plus nc2 cos raised to the power n minus 2 theta into iota sin theta whole square. Similarly, next term is nc3 cos raised to the power n minus 3 theta into iota sin theta whole cube and so on। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਟਾ ਆ cos raised to the power n theta ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਟਾ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਆਇਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਇਟਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक है, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट मीन्स विदाउट आइटा टर्म केड़ी नेक्स्ट आ गई nc2 cos raised to the power n minus 2 theta into sin whole square theta and so on। इस तो बाद नेक्स्ट जिनियां भी विदाउट आइटा टर्म्स है वो कंबाइन कर लांगे प्लस आइटा कॉमन ले लेना ते आइटा दी जिहड़ियां टर्म्स हैगियां वो लिख लेनियां। देखो एक ए टर्म आ जाएगी तुहाडे कोल इत्थे आइटा लगा होया nc1 cos raised to the power n minus 1 theta into sin theta। ओके, इस तो बाद ये वाली टर्म है इत्थे आइटा क्यूब है, आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा, इसलिए नेक्स्ट जी है विद आइटा टर्म जी आ जाएगी nc3 cos raised to the power n minus 3 theta into sin cube theta and so on। then comparing real and imaginary parts, जो तुसी real part compare करोगे तो तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी cos n theta is equal to a आ जाएगा तुहाडे कोल एक्सपेंशन। एंड कंपेयरिंग दी इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, तुहाडे कोल लेफ्ट हैंड साइड ते इमेजिनरी पार्ट की है sin n theta ते राइट हैंड साइड ते इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ cos n theta एंड sin n theta। हुण n की जिहड़ी भी वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ही तुसी ये स्टार्ट उसी तरह इस तरह ही करना है, डी मोवर थ्योरम तो स्टार्ट करना क्वेश्चन। जिस तरह सपोज असी फाइंड आउट करनी है एक्सपेंशन ऑफ sin 5 थीटा, ठीक है, sin 5 थीटा, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ sin 5 थीटा, ये क्वेश्चन है साडा, सानू इहदी एक्सपेंशन चाहिए है। हुण असी किस तरह स्टार्ट करना बाय डी मोवर थ्योरम। की आ जाएगा तुहाडे कोल ये साइड मैं इधरली साइड लिख लैनी है cos 5 थीटा प्लस आइटा sin 5 थीटा is equal to cos theta plus आइटा
साइन थीटा रेज टू द पावर 5। डायरैक्ट डिमोवर थ्योरम यूज करनी है असी, तो वो लैफ्ट हैंड साइड जी है वो इतने राइट हैंड साइड पर लिख ली। दैन राइट दी एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की आ जाएगा तुहाडे कोल ये cos रेज टू द पावर 5 थीटा प्लस 5c1 cos रेज टू द पावर 4 थीटा इंटू आयटा साइन थीटा प्लस सारिया टर्म्स लिख लैनिया 5c2 cos रेज टू द पावर 3 थीटा इंटू आयटा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 5c3 cos नैक्सट आप रोज लिख लें नैक्सट टर्म प्लस 5c3 cos स्क्वायर थीटा इंटू आयटा साइन थीटा होल क्यूब प्लस 5c4 cos थीटा इंटू आयटा साइन थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस 5c5 आएगा विच इज इक्वल टू 1 ते नाल तुहाडे कोल आ जाएगा आयटा साइन थीटा रेज टू द पावर 5। उस तो बाद नैक्सट स्टैप असीं की करना है कि इन्हों सिंपलीफाई कर लेना। cos रेज टू द पावर 5 थीटा एज इट इज लिख लो प्लस 5c1 की वैल्यू होंगी है 5, ये असीं इत्थे 5 लिख लिया। नैक्सट तुहाडे कोल इहदा कोएफिशिएंट की आ जाएगा अगे cos रेज टू द पावर 4 थीटा इंटू आयटा साइन थीटा, इसलिए असीं आयटा इत्थे लिख लेंगे साइन थीटा। ठीक है, नैक्सट है 5c2। हुण 5c2 की वैल्यू होंगी है 10 नाल cos क्यूब थीटा ते आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आयटा स्क्वायर -1 होंदा है इसलिए असीं इत्थे माइनस ला लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5c3। 5c3 की वैल्यू होंगी है 5 cos स्क्वायर थीटा ते आयटा क्यूब इज अगेन माइनस आयटा, इसलिए इसे लिख लेंगे -10 आयटा cos स्क्वायर थीटा एंड साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट टर्म 5c4 दिस इज इक्वल टू 5 ते आयटा रेज टू द पावर 4 प्लस 1, इसलिए तुहाडे कोल इत्थे रह जाना cos थीटा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। नेक्स्ट आयटा 5 इज माइनस आयटा, इसलिए तुहाडे कोल इत्थे आ जाना माइनस आयटा साइन 5 थीटा। ठीक है, ये आ गई तुहाडे कोल सिंपलीफिकेशन ऑफ राइट हैंड साइड। हुण उस तो बाद तुसीं की करना है कि रियल टर्म्स ते इमेजिनरी जिहड़ियां टर्म्स होणगियां उन्हां नूं सैपरेट कर लेना। पहला रियल लिख लेने हैं cos रेज टू द पावर 5 थीटा, नैक्सट आएगी 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगी प्लस 5 cos थीटा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, ये आ गई विदाउट आयटा टर्म्स। हुण विद आयटा टर्म्स किहड़ियां है, इत्थों स्टार्ट करते हैं प्लस आयटा कॉमन ले लो, तुहाडे कोल पहली टर्म आ जाएगी 5 cos रेज टू द पावर 4 थीटा साइन थीटा। नैक्सट ये वाली टर्म आएगी -10 cos स्क्वायर थीटा ते साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ते लास्ट किहड़ी आ जाएगी माइनस साइन रेज टू द पावर 5 थीटा। ठीक है, हुण लैफ्ट हैंड साइड तुहाडी है cos 5 थीटा प्लस आयटा साइन 5 थीटा ते राइट हैंड साइड है दोनों साइड ते कॉम्पलैक्स नंबर्स है। हुण तुसीं वैल्यू पता करनी है साइन 5 थीटा की, इसलिए असीं किहड़े पार्ट कंपेयर करांगे इमेजिनरी। ठीक है, हुण नैक्सट स्टैप असीं की करना कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। जो तुसीं लैफ्ट साइड ते इमेजिनरी पार्ट देखिया, लैफ्ट साइड ते इमेजिनरी पार्ट की है तुहाडे कोल साइन 5 थीटा। ठीक है, तो हुण तुसीं लिख देना comparing imaginary parts on both sides। दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करूंगे वी गेट लैफ्ट हैंड साइड पे आ जाना तेरे कोल साइन 5 थीटा ते राइट हैंड साइड पे देखो इमेजिनरी पार्ट तेरे कोल की है 5 cos 4 थीटा साइन थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन रेज टू द पावर 5 थीटा एंड दिस इज द आंसर। ओके,
इस तरह जे तुसीं cos 5 थीटा की वैल्यू पता करनी होंदी, सपोज तुसीं cos 5 थीटा की वैल्यू पता करनी होंदी, फिर असीं की करना सी, कंपेयरिंग दी रियल पार्ट्स, ठीक है। तो रियल पार्ट कंपेयर करोगे तो cos 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 5 थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट की है इत्थे cos 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा sin रेज टू द पावर 4 थीटा एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा एंड sin n थीटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे कोल find the expansion of sin 6 theta in powers of sin theta and cos theta। sin 6 theta इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड प्रूव दैट sin 6 theta ओवर sin theta जो इनू sin theta ना डिवाइड किया तो प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 6 cos theta माइनस 32 cos क्यूब थीटा प्लस 32 cos रेज टू द पावर 5 थीटा। ये क्वेश्चन है तुहाडे कोल। हुण सब तो पहला तो असी sin 6 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करांगे उस तरह जिस तरह असी लास्ट क्वेश्चन दे विच sin 5 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। की करना है असी डिमोवर थ्योरम तो स्टार्ट करना। बाय डिमोवर थ्योरम वी हैव cos 6 थीटा प्लस आइटा sin 6 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की असी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लैनी है। राइट हैंड साइड की आ जाएगा तुहाडे कोल इत्थे cos 6 थीटा प्लस 6c1 cos 5 थीटा इंटू आइटा sin थीटा। नेक्स्ट टर्म 6c2 cos 4 थीटा आइटा sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 6c3 cos क्यूब थीटा आइटा sin थीटा होल क्यूब प्लस 6c4 cos स्क्वायर थीटा आइटा sin थीटा रेज टू द पावर 4 6c5 cos थीटा आइटा sin थीटा रेज टू द पावर 5 तो लास्ट टर्म आ जाएगी 6c6 विच इज इक्वल टू 1 एंड आइटा sin थीटा रेज टू द पावर 6। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। हुण फिर तुसीं उस तरह की करना सिंपलीफाई करके रियल ते इमेजिनरी पार्ट्स जिहड़े आ वो सैपरेट कर लेने ते तुसीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 6 थीटा की, इसलिए आपां किहड़ा पार्ट कंपेयर करना इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, की आ जाएगा इत्थे तुहाडे कोल देखो सिंपलीफाई इहनूं कीता cos 6 थीटा 6c1 6 प्लस 6 आइटा cos 5 थीटा sin थीटा। नेक्स्ट है 6c2 की एक्सपेंशन होंगी है 15 नाल आइटा स्क्वायर है इसलिए माइनस 15 cos 4 थीटा ते नाल तुहाडे कोल आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 6c3 ते आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा इसलिए माइनस आइटा लगा लिया ते 6c3 की वैल्यू होंगी है 20 तुहाडे कोल आ जाएगा 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। फिर नेक्स्ट 6c4 की वैल्यू तुहाडे कोल सेम वही आ जाएगी 15 प्लस 15 ते नाल आइटा रेज टू द पावर 4 है विच इज इक्वल टू 1 15 cos स्क्वायर थीटा ते sin रेज टू द पावर 4 थीटा। 6c5 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 cos थीटा ते नाल तुहाडे कोल लगा होया आइटा रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू आइटा इसलिए इत्थे असीं लगा लैंदे आ 6 आइटा
cos थीटा sin रेज टू द पावर 5 थीटा, ठीक है, आयटा 6 विच इज इक्वल टू -1, इसलिए इधर बिल्कुल कितना आ जाएगा माइनस sin 6 थीटा। हुण तुसीं की करना है कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ਆਪਾਂ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करते हैं तो लैफ्ट हैंड साइड ते इमेजिनरी पार्ट की है sin 6 थीटा ते राइट तुसीं की करना है कि पहला अलग अलग कर लेने हैं दोनों पार्ट्स फिर कंपेयर करने हैं। हुण sin 6 थीटा आइटा वाली टर्म्स लिख लैनियां सी किहड़ियां किहड़ियां आनियां तुहाडे कोल 6 cos रेज टू द पावर 5 थीटा sin थीटा, ठीक है, इत्थों आ जाएगा -20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा, ठीक है, ਤੇ एंड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ +6 cos थीटा sin रेज टू द पावर 5 थीटा। ये तो आ गई वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा। हुण असीं फाइंड आउट करनी है sin 6 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, इसलिए इहनूं असीं दोनों साइड्स से sin थीटा नाल डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय sin थीटा ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हुण इत्थों sin थीटा कैंसल हो जाएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएगा 6 cos रेज टू द पावर 5 थीटा -20 cos क्यूब थीटा, इत्थे रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा +6 cos थीटा sin रेज टू द पावर 4 थीटा। हुण वैसा ये तुहाडे कोल आ गई वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा ओवर sin थीटा, पर असीं इहनूं इहदे इक्वल प्रूव करना है, मतलब sin नूं एलिमिनेट करना है, उहदी जगह ते cos लियाना, इसलिए साइन नूं cos दे विच कन्वर्ट कर दिंदे आ cos 5 थीटा -20 cos क्यूब थीटा, ते sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर थीटा +6 cos थीटा, ते sin रेज टू द पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट स्टैप दे विच आपां की करना है कि इन्हां नूं सिंपलीफाई कर लेना तो तुहाडे कोल कॉस दे विच आ जाएगी सारी एक्सपेंशन। ये आ गया तुहाडे कोल, इत्थे दोबारा लिख लेने sin 6 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 6 cos रेज टू द पावर 5 थीटा, हुण ब्रैकेट खोल दिंदे आ -20 cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, फिर आ जाएगा +20 cos रेज टू द पावर 5 थीटा, फिर ए वाली ब्रैकेट जो खोली 6 तुहाडे कोल है cos थीटा कॉमन, तो स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं 1 + cos रेज टू द पावर 4 थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इनू फर्दर होर सिंपलीफाई किया 6 cos रेज टू द पावर 5 थीटा -20 cos क्यूब थीटा +20 cos रेज टू द पावर 5 थीटा, तो यह वाली ब्रैकेट भी खोल दें, तेरे को आ जाना 6 cos थीटा +6 cos रेज टू द पावर 5 थीटा -12 cos क्यूब थीटा। हुण बस टर्म्स आपां कंबाइन कर लैंदे, ठीक है। असीं हुण पावर्स दियां इनक्रीजिंग पावर्स दे विच लिखदे हां। सब तो पहला तुसीं ये टर्म लिख लो 6 cos थीटा, फिर cos क्यूब थीटा वाली टर्म्स कंबाइन कर लैंदे हां। हुण cos क्यूब थीटा इत्थे 20 ते 12 -32 cos क्यूब थीटा प्लस फिर तुहाडे कोल cos रेज टू द पावर 5 थीटा cos रेज टू द पावर 5 थीटा cos रेज टू द पावर 5 थीटा, कंबाइन करो 32 cos रेज टू द पावर 5 थीटा एंड दिस इज द रिजल्ट। आपां यही प्रूव करना सी। हुण ये तुहाडे कोल सारा आ गईयां एप्लीकेशनस ऑफ डी मोवर्स थ्योरम, असीं सारियां एप्लीकेशनस ऑफ डी मोवर्स थ्योरम जिहड़ियां वो डिस्कस कर लईआं, ठीक है। हुण इस तो बाद नैक्सट चलदे हां आपां, नैक्सट साडा लैसन है elementary functions of a complex variable। ये फंक्शन जिहड़े तुसीं रियल वेरिएबल लई पढ़े होए आ वही असीं इत्थे कॉम्पलैक्स वेरिएबल लई पढ़ने आ। एलीमेंट्री
functions of a complex variable. ये असी वन बाय वन पढ़ांगे फंक्शंस, एलीमेंटरी फंक्शंस ऑफ ए कॉम्पलैक्स वेरिएबल। सब तो पहला जिहड़ा फंक्शन असी पढ़ना है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिहनूं तुसीं ई रेज़ टू दी पावर लिखदे हैगे आ, ऑलरेडी पढ़िया होया तुसीं, उहनूं असी पढ़ना है फॉर ए कॉम्पलैक्स वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हुण सपोज करो कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर तुहानूं दिता होया z, दैट z इज इक्वल टू x प्लस आल्टा y बी ए कॉम्पलैक्स नंबर, कॉम्पलैक्स वेरिएबल कह लो जा। ठीक है, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z, इनू जानदा सी इस तरह लिखते हैं ई रेज़ टू दी पावर z, और इस तरह लिखे ना एक्सपोनेंशियल z। हुण की एक्सपेंशन हुंदी है, इहदी एक्सपेंशन ओही हुंदी है जिहड़ी तुसीं रियल वेरिएबल लई पढ़ी हुई है। की एक्सपेंशन हुंदी है 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू दी पावर z। हुण जे असीं इत्थे z दी वैल्यू पुट कर दईए, z कॉम्पलैक्स नंबर है, इनू असीं इस फॉर्म दे विच लिखदे हां x प्लस आल्टा y, then e raised to the power x plus iota y is equal to 1 plus z दी जगह ते x plus iota y, x plus iota y whole square by 2 factorial, x plus iota y whole cube over 3 factorial plus up to infinity। हुण असीं की करना है कि इत्थे पहला जिहड़ा रियल पार्ट है उहनूं 0 पुट करके देखदे की वैल्यू आउंदी है। पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट e रेज टू द पावर आइटा y, दोनों साइड से पुट कर दो, 1 प्लस आइटा y प्लस आइटा y होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आइटा y होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक टर्म होर लिख लेने हैं, आइटा y रेज टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू इनफिनिटी। हुण इहदे विच कुछ टर्म्स विद आइटा आउणगियां, कुछ विदाउट आइटा आउणगियां, अलग अलग दोनों नूं कंबाइन कर लैंदे आ। पहला विदाउट आइटा 1, हुण देखो इत्थे आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इत्थे आइटा 4 इज +1, इसलिए आ जाएगा y 4 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू इनफिनिटी जाणगी। सिमिलरली विद आइटा टर्म्स कंबाइन कर लेने हैं। फर्स्ट टर्म है आइटा y, ये जो आइटा कॉमन ले लिया, इत्थे आ जाएगा आइटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस आइटा, ये आ जाएगा y क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आ जाएगी y 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। ते हुण तुसीं आ वालियां एक्सपेंशनस दोनों पढ़ियां हुईयां। e रेज़ टू द पावर आइटा y लैफ्ट हैंड साइड किहदे इक्वल आ गया, ये हुंदी है एक्सपेंशन ऑफ cos y एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ sin y। ठीक है, हुण ये तुहाडे कोल एक फॉर्मूला बन गया e रेज़ टू द पावर आइटा y इज इक्वल टू cos y प्लस आइटा sin y, वेयर y इज रियल। जो भी असीं कॉम्पलैक्स नंबर लिखते हैं x प्लस आइटा y, x एंड y बोथ आर रियल। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑलर्स थ्योरम, ऑलर्स थ्योरम या ऑलर्स फॉर्मूला कह लो। दिस इज ऑलर्स फॉर्मूला, e रेज़ टू द पावर आइटा y इज इक्वल टू cos y प्लस आइटा sin y या सिज y। इन्हें याद रखना, बहुत जगह ते यूज होएगा। ठीक है, हुण दोबारा तो फिर आ जाओ, असीं x नूं 0 पुट कीता सी, जे सपोज करो x 0 ना होए, e रेज़ टू द पावर x प्लस आइटा y, दिस कैन बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर आइटा y। ठीक है, ते e रेज़ टू द पावर आइटा y असीं हुणे प्रूव कीता cos y प्लस आइटा sin y। ठीक है, दैन ये आ गया तुहाडे कोल e रेज़ टू द पावर z। ठीक है, कॉम्पलैक्स नंबर। पहला फंक्शन तुहाडे कोल हुण आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्पलैक्स नंबर। हुण असीं e रेज़ पावर z दीयां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज देखदे हां, किहड़ियां प्रॉपर्टीज हुंदियां इहदियां। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये वाला रिजल्ट इत्थे लिख लैंदे हां,
e raised to the power x plus iota y is equal to e raised to the power x cos y plus iota sin y। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कि जी e raised power z है, प्रूव दैट दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। प्रूव दैट e raised to the power z is a periodic function। पीरियोडिक फंक्शन तुसी पढ़े हुए आ, पीरियोडिक फंक्शन किहड़े हुंदे आ ਜਿਹੜੇ एक फिक्स पीरीयड तो बाद रिपीट होंगे आ, उन्होंने पीरियोडिक फंक्शनस बोलते हैं। हुण असीं इत्थे देखना है कि जिहड़ा e रेज़ टू द पावर z है प्रूव करना है कि दिस इज पीरियोडिक, तो इहदा पीरीयड चैक करांगे किन्ने पीरीयड बाद ये रिपीट हुंदी है, इहदी वैल्यू सेम आ जाती है दोबारा। फिर हुण इत्थे की गिवन है तुहानूं e रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ए आपां हुणे लिखी है x cos y प्लस आइटा साइन वाई। हुण असीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिहड़े आ साइन वाई कॉस वाई ये पढ़े हुए आ, सानूं पता है कि दे आर पीरियोडिक विद पीरीयड 2 पाई तो बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, है ना। जे असीं लईए साइन वाई प्लस 2 पाई, जां इदां लिख लो साइन ये पढ़िया होया तुसीं 2 पाई प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। नैक्सट साइन 4 पाई प्लस थीटा ये भी कहते इक्वल होंगे साइन थीटा। इट मीन ये पीरियोडिक है फंक्शन, तो पीरीयड कितना है 2 पाई, ठीक है। तो ये जे असी कॉस वाई नूं सिमिलरली फॉर कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सो ऑन। हुण जिहड़ा कॉस वाई है दिस कैन बी रिटन एज वाई प्लस 2n पाई प्लस आइटा साइन y प्लस 2n पाई, ठीक है। क्योंकि तुहाडे कोल 2 पाई नाल भी सेम वैल्यू आएगी, 4 पाई नाल भी सेम वैल्यू आएगी, 6 पाई नाल भी सेम वैल्यू आएगी, इसलिए इत्थे लिख लिया y प्लस 2n पाई वेयर n इज ए नैचुरल नंबर, ठीक है। हुण देखो कि ये तुहाडे कोल की आ गया फिर e रेज़ टू द पावर z तो स्टार्ट किया सी, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। हुण जे असीं ये ऑलर्स फॉर्मूला लगावांगे सानूं पता है कि e रेज़ टू द पावर आइटा y किहदे इक्वल हुंदा है cos y प्लस आइटा sin y, ठीक है। हुण इत्थे cos y की जगह ते की है cos y प्लस 2n पाई, इसलिए इहनूं आपां की लिख लांगे e रेज़ टू द पावर आइटा y प्लस 2n पाई बाय यूजिंग दिस ऑलर्स फॉर्मूला। और सिंपलीफाई करो इनू ई दियां पावर्स जिहड़ियां वो ऐड हो जाणगियां e रेज़ पावर x प्लस आइटा y प्लस 2n पाई आइटा एंड दिस कैन बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर ये वैल्यू किहदी है z दी, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y z प्लस 2n पाई आइटा। हुण कित्थों स्टार्ट कीता सी e रेज़ टू द पावर z तो, e रेज़ पावर z किहदे इक्वल आ गई e रेज़ पावर z प्लस 2n पाई आइटा। इट मीनस असीं z दे विच की ऐड करांगे मल्टीपल ऑफ 2 पाई आइटा, देयरफॉर the same सारे को वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर e रेज़ पावर z इज पीरियोडिक। एक फिक्स पीरियड तो बाद ओदा वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है, पीरियोडिक विद पीरियड, कितना पीरियड है 2 पाई आइटा लिखांगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी आ गई तुहाडे कोल ऑफ exponential function e raised to the power z, that e raised power z is periodic function with period 2 pi iota। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि e raised to the power z, z is a complex number, is equal to 1 if and only if z is equal to 2n pi iota where n is an integer, ठीक है। किस तरह इनू प्रूव करांगे आपां, इत्थे प्रूफ लिख लैंदे हां। हुण इफ एंड ओनली इफ है दोनों साइड्स प्रूव करनियां ते z दी वैल्यू x प्लस आइटा y लैके चलदे पे आपां। हुण e रेज़ पावर z इज इक्वल टू 1 तो स्टार्ट करो, लेट e रेज़ पावर z इज इक्वल टू 1 ते ये चीज़ आपां प्रूव करांगे, ठीक है। एंड e रेज़ पावर z इज e रेज़ पावर x प्लस आइटा y इज इक्वल टू 1, ठीक है।
and this can be written as e raised to the power x into e raised to power iota y is equal to 1, and e raised to power iota y by Euler's formula cos y plus iota sin y। ठीक है, ਹੁਣ राइट हैंड लैफ्ट हैंड साइड कॉम्पलैक्स नंबर है, राइट हैंड साइड ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 plus 0 into iota। ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। therefore we get e raised power x cos y is equal to 1 real part and e raised power x sin y is equal to 0। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ z is equal to 2n pi iota। ਵੈਸੇ z ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, x plus iota y ਦੇ। इट मीनस कि ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ e raised to the power 2x is equal to 1 and 1 can be written as e raised to the power 0। ਹੁਣ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। this implies that 2x is equal to 0, this implies that x is equal to 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ cos y is equal to 1 and sin y is equal to 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ y ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, this implies that 2n pi। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਹੋਵੇ, 4 ਪਾਈ ਹੋਵੇ, 6 ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ cos y 1 ਹੋਏਗਾ ਤੇ sin y 0 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2n pi। therefore z is equal to, z ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ x plus iota y ਦੇ, ਲੇਕਿਨ x 0 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 2n pi iota। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, e raised to the power z is equal to 1 ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ z is equal to 2n pi iota। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, let z is equal to 2n pi iota ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ e raised to the power z is equal to 1। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, e raised power z is equal to e raised to the power 2n pi iota, again using the Euler's formula iota y is equal to cos y, e raised power iota y is equal to sis y। ਹੁਣ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 2n pi, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ cos 2n pi plus iota sin 2n pi and cos 2n pi 1 sin 2n pi 0, therefore this is equal to 1। ठीक है, hence the result दोनों साइड्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ कि ये तुहानू दो कॉम्पलैक्स नंबर दिते हुए z1 एंड z2। इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्पलैक्स नंबर्स एंड e raised to the power z1 is equal to e raised to the power z2, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इक्वल है, देन ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ z1 is equal to z2 plus 2n pi iota। ਜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇੱਕ, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट है, दैन z1 इज इक्वल टू z2 प्लस 2n pi iota। इनू किस तरह प्रूव करांगे, इथों स्टार्ट करते हैं। तुहानू की गिवन है e रेज़ पावर z1 इज इक्वल टू e रेज़ पावर z2, ठीक है। हुण इहदे नाल तुसीं इधर डिवाइड कर देना, तुहाडे कोल आ जाना e रेज़ पावर z1 ओवर e रेज़ टू द पावर z2 इज इक्वल टू 1। फिर तुसीं ये एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वही इत्थे अप्लाई होंदे आ। ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड हुए हैं तो पावर्स जिहड़ियां इस तरह सबट्रैक्ट हो जांदियां, ठीक है। e रेज़ पावर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हुणे असीं लास्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ के हटे हैं कि e रेज़ टू पावर z कॉम्पलैक्स नंबर 1 कदों हुंदा है, जदों z की वैल्यू कितनी हुंदी है 2n पाई आयोटा।
इसलिए ਅਸੀਂ लिख ਦਾਂਗੇ फ्रॉम द लास्ट रिजल्ट z1 minus z2 is equal to 2n pi iota from the second result. This implies that z1 is equal to z2 plus 2n pi iota. ठीक है, ये तुहाडे कोल नैक्सट प्रॉपर्टी आ गई। हुण ये तुहाडे कोल कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ ए कॉम्पलैक्स वेरीएबल दियां। बाकी इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन जिहड़े असीं नैक्सट वीडियो च करांगे। थैंक यू।